we've decided to keep playing it over and over again so that we can all feel the buzz in the beginning of it. But ladies and gentlemen, Vyom and Sachi, big round of applause for them. Pehla performance, I'm sure. Better round of applause, ladies and gentlemen. There you guys go. The most obvious question has to happen यार. पूरी पिक्चर बना ली, पूरी डबिंग कर ली, अपनी परफॉर्मेंस देख ली, सब आपने ग्रेडिंग अपने आप कर ली, लेकिन it all becomes on that side of the door. आज जब दरवाजा खुल गया है, in front of the media, I know of course there are butterflies, but what's the feeling like? Is it relief? Is it excitement? What's it like यार? I'll be honest, I'm very nervous right now because हमने इतने सारे दिग्गज एक साथ. I'm very, very nervous because. तो ऊपर देखो, don't look down at them. It always helps. I can never look down on them. I have to look up to them so I can become like them. Well done. Well done. And of course, it's my first film, and I am very excited कि जो हमने मेहनत की है, प्यार डाला है इस फिल्म में सब लोगों ने. It's not just two of us, obviously. डांस तो हम ही कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब थोड़े से डांस में थोड़े से वीक है, लेकिन otherwise they've made it possible for us to stand here, to look good on the screens, to put us out there, give us the platform, and I'm really thankful to Sharad sir, to Lalit sir for giving us this beautiful album. Shan sir is here with us. Thank you so much. I love you all. Vivek sir, Sanjay Tripathi sir, our director, he's there. Malini ma'am, thank you so much, and thank you so much for being here, yaar. I mean, I know मतलब ये thank you speech, first speech कैसे बन गया, लेकिन I'm so grateful right now, and over to Sachi because मैं बहुत ज़्यादा भूल जाऊँगा नहीं तो otherwise. But love you all, seriously. But today is a day we're going to hear a lot of you. So big round of applause, ladies and gentlemen, Vyom के लिए. Sachi, as always, is beautiful. Instagram की दुनिया से बाहर निकल के जब बड़े पर्दे की दुनिया में आ जाते हैं, तो always ऐसा रहता है. You start seeing how you're looking. मैंने तो कुछ sneak peeks देख लिए हैं. You're looking wonderful. You performed wonderfully also. But what's the one thing that you wanted? आज you must have been having a very sleepless night last night. कि आज Not just last night. अच्छा, many nights. Just 3 nights we've not slept. तो पहले कुछ शब्द जो बोलना चाह रहे थे सारे लोगों से मीडिया से, this is the first time they're meeting you. What would you like to say to them? Firstly, thank you for being here for us. It really means a lot. बहुत सारी feelings से अभी. Just walk a step forward should be fine. Yeah. बहुत सारी feelings है. बेटा वो खाना इवेंट से पहले था. Now you can sit down. Thank you. थोड़ी सी nervousness है. It feels surreal, but I think सबसे ज़्यादा जो emotion मैं अभी feel कर रही हूँ खुशी है, because I think I've dreamt of this. ये सपना मैंने तब देखा था जब शायद मैं बहुत छोटी थी, since I can remember. And not just me, I think ये मेरी mom का सपना था. And That, ladies and gentlemen, is a mother. Big round of applause. Welcome, ma'am. And congratulations to you as well. And I feel for me to be here today with my family, I think I'm extremely lucky. All of them are here, and I just hope to make them proud. And all of this is only because of my team here, my Sharad sir, Jannat ma'am, Sanjay sir, Vivek sir, everybody. It wouldn't have been possible without you all. So thank you so much. Rab Rakha. And Salil, just one second, I'm so sorry, I forgot Udit sir is here, yeah. I mean, Arey Udit sir, the Thank you great so Udit much. sir. Thank you so much, sir, for joining us. आपकी जरूरत सर बहुत लगेगी स्टेज पर कुछ देर के बाद सर. Thank you. But also, guys, before I ask you all to sit down, also, what's the one thing, because you all spend so much time together. अभी क्या होगा ना, सब जगह आप एक साथ जाएंगे. And you know that journey will be together. ये तो बस अब शुरुआत है. The one quality that you really liked about him, and one quality जो आपको सांची के बारे में बहुत पसंद है. ladies first. नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, बोल देती हूँ, चलेगा. I feel एक चीज इसके मुंह से मैंने हमेशा सुना कि कोई स्ट्रेस मत ले, और मैं आई थिंक वो पर्सन हूँ जो हमेशा बहुत ओवरथिंक करती है, या फिर हमेशा लाइक आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग कि अच्छा ये वाला सीन है, कल ये वाला सीन है, बट ये एफर्टलेसली वो सीन को प्रिपेयर कर लेता है और फिर कोई स्ट्रेस नहीं है. सेट पे ही इज लाइक ओके, इट गो वेरी गोइंग विद द फ्लो टाइप ऑफ अ पर्सन. सो आई फील दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम. She looks less stressed right now, and you look more stressed right now. Exactly. Sorry for letting you down today, यार. At the final day मैं day one से बोलते आगे कि कोई stress मत ले. Finally आके भाई मैं nervous हूँ, ये ठीक है. So I'm really sorry for that. But
One quality? Yes, of course. See, the thing is कि obviously मतलब मैं ना better at hiding कि हमको stress नहीं हो रहा है, लेकिन it's all because of the lady who's next to you. That's what displaces Brother, the stress. जो लाइनें आप लिख के आए हैं किताब में, it's working very well today. Huh? You're winning it all over. And mind it, it's my debut, huh? Well done. Charming and height भी है, सब कुछ is working all for you all. Thank So you, big sir. round of applause, ladies and gentlemen. You all take a seat. Thank you, thank you. I'll be calling you all back on stage from stage left. Yes. Thank you so much. मन्नू क्या करेगा म्यूजिकल rom-com presented by Curious Eye Cinema, a film by Sharat Mehra ji, produced by Sharat Mehra ji, directed by Sanjay Tripathi, and this is when I want a roll call. मैं तो तालियां हो जाएंगी जब मैं एक एक का नाम ले रहा हूं. Written by Saurabh Gupta, music by Lalit Pandit ji, executive producer Jannat Sethi, and a fabulous star cast: Kumud Mishra ji, Vinay Pathak, Rajesh Kumar, and Charu Shankar. Releasing on the 12th of September in cinemas. A big round of applause, ladies and gentlemen. ये जो पहला दिन होता है ना जब सब कुछ रिलीज हो रहा होता है, दिस नेवर कम्स बैक, एंड देन द सेकंड टाइम इट हैपेंस इज द फर्स्ट डे जब 9 बजे सर आपके सबसे ज्यादा बटरफ्लाइज होंगे उस दिन, क्या कलेक्शंस हो रही है, दैट विल बी देयर. बट टुडे वी गोना स्टार्ट ऑफ विद द म्यूजिकल लॉन्च, एंड बहुत दिग्गज यहाँ बैठे हैं, एंड आकृति और लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज वेल, सो गुड टू सी यू एज वेल. बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखते हो सारे लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना सपोर्ट दे रहे होते हैं फिल्म को, इट्स वंडरफुल. द म्यूजिक एल्बम हैज सो मेनी बिग नेम्स. इट्स माय ऑनर टू हैव ऑल ऑफ देम ऑन स्टेज टुडे. बट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा द लेजेंड हिमसेल्फ ललित पंडित सर, एंड द ड्राइविंग फोर्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म शरद मेहरा जी, जो कि मल्टी टैलेंटेड है. 2 गाने भी लिखे हैं उन्होंने. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज. नवा प्ले करें सर. आपके अंदर की कैसी फीलिंग आ रही है सर? आपने काफी सोचा होगा इस दिन के बारे में जब पूरी दुनिया के सामने आप प्रेजेंट करेंगे. शरद जी, कुछ शब्द हो जाए. मेरी भी हालत थोड़ी व्योम जैसी हो रही है. वो तो थोड़ा ट्रेन्ड एक्टर है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, बट यस नर्वस, एक्साइटेड, बट रियली वेरी हैप्पी. जो जर्नी रही है, और सबसे पहले मैंने किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करीब 1-1.5 साल पहले इसी हॉल में देखा था. एक पिक्चर थी 800. तो सचिन तेंदुलकर वाज हियर, मुरलीधरन वाज देयर. सर मैं भी यहीं था. आप भी यहीं थे. मैं आपका भी नाम ले रहा था. यस यस. तो उसके बाद अब इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर, एंड आई थिंक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, हैप्पीनेस, बट a creative pleasure in whatever was done, because I think Sachi and Vyom have done a terrific job. Lalit sir has done something outstanding, and all of us, the entire team. So very happy and proud. वंडरफुल. ललित जी, जब भी कोई नई फिल्म प्रोजेक्ट आ जाती है, कभी भी ऐसा लगता है कि यार आज मेरे को राइटर्स ब्लॉक हो रहा है, या फिर मैं बना पाऊंगा कि नहीं, अपने खुद के उम्मीदों पर खरे उतर पाऊंगा कि नहीं. आज भी इतने एक्सपीरियंस होके, इतने लेजेंडरी स्टेटस पर पहुंच के, ऐसे कभी भी सोच आती है? कभी भी फ्रैंकली मुझे तो ऐसा नहीं आता. मैं हमेशा ही बहुत प्रिपेयर्ड रहता हूँ. इनफैक्ट मैं तो ऐसे ऐसे दौर से गुजरा हूँ जहाँ कभी काम नहीं था, कभी बहुत था, और मैं लेकिन काम करता ही रहता हूँ. तो जब शरद जी आए थे मेरे पास, तब कुछ गाने तो मेरे दिमाग में थे ही, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर म्यूज़िक जो अच्छा होता है, जो बनता है, और मैंने तो इतने साल काम किया है, आप लोग आजकल तो मुझे लोग सर बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है, तो ऐसा मत बोला करिए आप. मुझे आगे बहुत काम करना है. तो ऐसा था कि जब ये आए थे तब मुझे ये दिमाग में आ गया था कि बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका म्यूज़िक का, जो कि एक अच्छा म्यूज़िक देने के लिए बहुत ही एक अहम फैक्टर है. ये मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है. तो मैंने मेरे बेटों को भी कहा, और जो मेरे सिंगर्स दोस्त हैं उनको भी ये कहा था कि इस म्यूज़िक में हमें करना है करेक्ट काम. तो इनका बहुत अच्छा साथ रहा, जन्नत का बहुत अच्छा रहा, और फिर मेरी जो टीम है, वंडरफुल सिंगर्स, ये तो सब साथ थे. तो एक ऐसा म्यूज़िक बन के आया है जो कि मैं सोचता था कि एक पिक्चर में ऐसा म्यूज़िक दूं जिसमें सारे गाने अच्छे हों, जो कि अक्सर जो मैंने पहले किया है उसमें हो जाता था. मगर आपको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप वो कर सकें जो आपके दिल में है, और आप एक एल्बम बनाएं जो एक यादगार हो. इस फिल्म में मुझे वाकई ये लगता है बहुत सालों के बाद कि सारे गाने पिक्चर के बहुत अच्छे बने हैं. और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ म्यूजिक, आजकल जो भी म्यूजिक आता है बहुत अच्छा आता है,
मगर फिर भी एक आध गाना ऐसा आ जाता है जो आउटस्टैंडिंग है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा म्यूजिक ही आउटस्टैंडिंग है। बात है। तो देखिए, मेहनत तो हर काम में अच्छी होती है, मगर मेहनत करने के बाद जब लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है और वो मिल जाता है आपके दिल को खुशी कि नहीं आपने करेक्ट डिलीवर कर दिया है, तो एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है। और इससे बेटर मोमेंट हो नहीं सकता अगर आपने अपना काम देख लिया और आप अगर संतुष्ट हो गए। एक बैट्समैन की तरह होता है, जब वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव पर चौका जाती है, यू जस्ट नो इट्स परफेक्ट सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, प्लीज डू टेक अ सीट थैंक यू। एंड आई विल प्ले हमनामा फॉर यू। पहले आपको गाना की एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा देंगे। सो व्हाट वी गोना डू इज, हर एक गाने के लिए एक 30 सेकंड की हमने क्लिपिंग बनाई है, सो दैट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। साची और राजेश सर एंड द रील सन एंड अदर। रील मतलब कि जो स्क्रीन पर, रील REEL। आजकल हमारा रोज इंस्टाग्राम वाली रील्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअली रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। व्योम एंड चारू मैम, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, ताकि हम लोग ये परफॉर्मेंस कर पाए। और थोड़ी सी रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ये देख चुका हूं पहले। सो वेल डन सर, आर यू रेडी? वेलकम टू द शो। सो ये जो रिविजन वाला मैंने ऑलरेडी गाना सुना दिया। राजेश जी, आर यू रेडी? आखिरी के 5 सेकंड was improvised. I love it. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Wonderful. Can you please have a seat? Thank you so much. Today is going to be all about the cute little moments on stage also. Thank you. मतलब charming के साथ chivalrous भी है. Love it. ये फिल्म जो है एक्चुअली इट्स, यू नो, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट इट बीइंग अ रोम-कॉम, लेकिन ये उन लम्हों को भी दिखाता है जो हर जनरेशन में एक हार्ट ब्रेक वाली फील देता है। और everybody in this room has had heartbreak more than once. Some have had heartbreaks forever. But एक ऐसी आवाज होती थी, I remember in all my years at radio, जब मोहित चौहान साहब की आवाज आती थी, you know, and or especially in this मौसम. So when you used to have the rain and you used to have him singing, you used to just go wow. But obviously अंदर दर्द भी बड़ा फील हो रहा होता था। Composed by ललित पंडित जी and lyrics by of course शरद मेहरा जी। शरद जी ने इसके lyrics खुद लिखे हैं, इनके लिए तालियां हो जाए ladies and gentlemen। फना हुआ is this beautiful song that I'd like you to listen to. लेकिन उससे पहले I would like to say that I'd like to call Lalit ji as well as Sharad ji on stage to talk about this song also, जो आपने लिखा भी है सर, और इसके कुछ anecdotes भी हो जाए, तो गाना भी play हो जाए, और we'd like to invite the gentleman on stage as well. जुदा होके जीना अधूरा है, इसलिए के लिए भी शरद जी, ये हार्ट ब्रेक तो आपने बहुत महसूस किया है, तभी आपने लिखा, या हाउ? बिकॉज लिखे तो आप ही ने सर ये सारे शब्द। आपने जवाब खुद ही दे दिया उसमें कि जितनी बार दिल टूटा है एक एक शब्द वहीं से निकला है। बट आई थिंक इट वाज रियली द म्यूजिक दैट वाज देयर। वो अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि जब गाना ये बन रहा था तो एक्चुअली काफी प्रेशर में आया था मैं, और ये गाना फिल्म में नहीं था। अच्छा, ये गाना फिल्म में नहीं था कि बहुत अच्छा गाना है, हम आगे यूज करेंगे। लेकिन एक बार जब प्रोडक्शन के दौरान शाम को वी वर ऑल सिटिंग दैट इवनिंग, तो सारे हम अपने पिक्चरों के गाने सुन रहे थे, और कहीं पे ये गाना जब चला तो जितने ही सब लोग बैठे हैं, संजय, चारू, व्योम, साची, दे ऑल वर आफ्टर व्हाटएवर इट इज, ये गाना तो लेना ही है फिल्म में। एंड देन वी टॉक्ड। इट वाज नॉट पिक्चराइज्ड एट दैट टाइम? नो। अच्छा, सिर्फ गाना था बस? सिर्फ एक ट्यून थी अच्छा। इनके साथ एक बनाई हुई। तो ये हुआ था इस गाने को शायद बहुत ज्यादा गाने हो रहे हैं पिक्चर में, इसको लेते नहीं है। बट उसके बाद जब पूरा यूनिट वाज दिस थिंग कि अगर ये गाना नहीं आएगा तो कल से काम नहीं होगा। बड़ा शैतान यूनिट था, इसलिए प्रेशर में आके ये फिर गाना बनाना ही पड़ा। और वो दिल से आवाज निकल रही थी, कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ था और कुछ पिक्चर ओवर बजट जा रही थी। तो दोनों चीजें हुई और गाना बन गया। सर ये एग्जैक्ट सेम कहानी सच है ये? मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा था कि अभी मैं इन सबको बुलाऊंगा गाना जब हमारा सेशन होगा। आई रिमेम्बर सम वंडरफुल सेशंस दैट वी हैव हैड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इतना मज़ा आता था, जैसे म्यूज़िक बनना चाहिए ये उस डायरेक्शन में बना है, तो उसका एक मज़ा आता है, एक नशा आता है काम करने का। इनफैक्ट इस पिक्चर का जो नींव है और जो स्टार्ट थी, वो शूटिंग वगैरह, कास्टिंग वगैरह किसी चीज़ से नहीं थी, सिर्फ म्यूज़िक से हम लोग स्टार्ट हुए थे। और
बस मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी जर्नी रही कि अभी बहुत मेमोरेबल लगता है कि इतना अच्छा काम हो गया, मगर टाइम लगाओ तो अच्छा हो जाता है मेरे लिए। बट एक चीज और सलील, इस गाने के बारे में कि आई थिंक अभी तो छोटा सा एक स्निपेट देखा, बट व्योम हैज डन a terrific job in this song. जो अंदर से ना, इसका भी बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, जो अंदर से वो आ रहा था ना, that every feeling, every tear that was there, it was done so naturally and beautifully कि जब जो लोग देख भी रहे थे शूटिंग के टाइम पे, they could just feel it. और ये गाना मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने में. So और very special. मैं एक बात और बोलना हीरोइक भी चाहूंगा। है सर, ये हीरोइक गाना भी है, जो जितना भी थोड़ा सा देखा है हमने, हिज मूवमेंट्स आर वेरी हीरो, एक हीरो को एक हीरोइक हार्ट ब्रेक वाला गाना जरूरी होता है गाने फिल्म में. आई थिंक दिस इज दैट फॉर हिम. इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा that this is one of the best song written in the film, which is written by Sharat ji. Thank I love this song and the mood that has come out of it, and of course the way Mohit has sung. He's not here with us today, मगर मजा आ गया था ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, और the contribution of musicians and everything else was wonderful. I want to talk about Mohit also, somebody who we all love, and there was एक दौर था, मुझे याद है, जब पीलू और ये सारे गाने चल रहे थे, so much of Mohit was there. कई बार आप उनसे पूछते हो थोड़ा और रह जाया करो यार मुंबई में, just your interaction with him, he's just sometimes he's a very there but not there personality. तो कुछ मोहित सर से बातें जो हुई कि भाई वापस मुंबई थोड़ा आ जाइए, थोड़ी और रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, मे बी आफ्टर दिस सॉन्ग we'll see a lot more of him. देखिए, आई एम तो वेरी प्रिंसिपल इन माय वे ऑफ वर्क. मैं बहुत रिहर्सल्स करता हूँ सिंगर्स के साथ, मुझे बैठना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है कि मुझे कैसे मेरे दिमाग में गाना है, और फिर उसमें वंस वो ढल जाते हैं उसमें मैं करता हूँ. तो मोहित ने इसमें तो बहुत अच्छा काम किया है. ही लव दिस सॉन्ग इन फैक्ट. और मुझे ऐसा लगता है जब किसी आर्टिस्ट को ये, जैसे इनको लग गया था कि ये गाना बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, पता नहीं है इनको कैसे आया, वैसे सिंगर्स में भी बहुत ज़रूरी बात है कि रिहर्स करें गाने को, उसमें अपने आप को ढालें और फिर गाएं. ये एक आदत है हमारी कि प्रोसेस ऑफ काम. तो इसमें तो मोहित ने बहुत अच्छा रिहर्सल किया था. इनफैक्ट वी रिहर्स फॉर a few days for this song, and then मुझे तो आवाज़ भी बहुत पसंद है रोहित की, and the idea of Rohit singing this particular song was Sharad and Jannat's idea. So I think there was a tremendous involvement of everything that happened in this, and I think the result is too satisfactory, I must say. Absolutely, way beyond satisfactory. Thank you so much, gentlemen. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. हर एक गाने के ऐसे beautiful little anecdotes that you'll keep getting out of it. Really fantastic. Because you want to see yourself, you must always say it. Well done. तो 30 सेकंड है सर, बाकी in the world of AI we might be able to do it tomorrow, not today. हो जाए. Can we play that again? 30 second. छाया है अंधियारा. This is the voice that of course we always say with Udit ji, चाहे heartbreak हो, चाहे happiness हो, he always makes everybody smile so much. तो पहले मैं ये 30 सेकंड की क्लिपिंग सुनाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा, and then I'd like to call Udit ji on stage along with Sharayu दत्ते, जिन्होंने इनके साथ ये गाया है. तो पहले ये क्लिपिंग हो जाए. And Sharayu, can we please have you on stage, sir? ताली हो जाए, ladies and gentlemen. बहुत कम मौके मिलते हैं आजकल उदित जी से मिलने के लिए. सर पीछे माइक ले लीजिए जरूर. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच आने के लिए. आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग. माइक में आवाज कम तो नहीं है? नहीं, मुझे भी लग रहा है. आप मेरा माइक ले लीजिए सर. आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब. सबसे पहले तो मैं मन्नू क्या करेगा को बधाइयां देता हूं. उनके पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं. पिक्चर शॉर्ट हिट है, लेकिन शरद जी एक रिक्वेस्ट है आपसे. पिक्चर अगर डेफिनेट हिट है, अगर हिट हो जाएगा ना, तो दूसरा टाइटल आप रखना, मन्नू क्या करेगा अभी है, लेकिन मन्नू करेगा धमाल. जी, I have been entertaining you all for more than 45 years. अरे भाई, इसी के लिए तालियां. एग्जैक्टली मेरी उम्र.
जी, बिल्कुल सर। ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक मेल सिंगर 45 साल का करियर पूरा किया है, एंड थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस स्टिल स्ट्रांग। यस सर। Thanks to entire film industry, my music directors, writers, everyone, technicians, everyone. आज इतने सालों का सफर है और आज भी पंडित जी, हमारे ललित पंडित जी ने, पहले तो जतिन ललित जी थे जी। तो उन्होंने एक से एक फिल्मों में मुझे गवाए, DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है वगैरह वगैरह, मतलब अनगिनत है, और सारे फिल्म म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। बिल्कुल जी, और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलेगा। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं छूटे ना कोई आंखों में जो था सपना। आजा संग मेरे यारा, खुद से ये कर ले वादा, टूटेंगे नहीं सारी बाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना। थैंक यू सो मच। रुकिए सर, मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। मुझे भी रेडियो करते हुए अभी ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं, और बहुत बाहर सिंगर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं, और सुबह का शो रहता है 7 से 11 के बीच में, और आप सोचते हो कि क्या हमारे सिंगर्स तैयार हैं, यू नो, समटाइम्स कभी एक कॉफी नहीं पी होती है, कई बार लेट नाइट रिकॉर्डिंग रहती है। उदित जी की ऐसी एक आवाज है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2005 की एक रिकॉर्डिंग पॉज कर दी होती और आज 2025 में उस रिकॉर्डिंग को रीस्टार्ट करें, तो टोन, क्वालिटी, हर चीज वो आज भी मैच कर लेंगे। दैट इज जस्ट हिज गिफ्ट दैट ही हैज, एंड वेरी रेयरली डज दिस हैपन। लोगों की आवाजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी आ चुका है, AI आ चुका है, लेकिन उदित जी, योर वॉइस इज ऑल्सो एवरग्रीन सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच। लेकिन एक बात और कहूंगा कि ललित पंडित जी ने कंजूसी किया है। अच्छा, इन्होंने सोचा होगा साला ये तो बुढ़ा हो गया, अभी क्या गाएगा, लेकिन इनको पता नहीं मैं कयामत से कयामत तक चलने वाला हूं। शुक्रिया सर। पार्ट टू में जरूर। और दिस इज योर्स जी, मैं अपने पास ही रख लेता हूं, देख के स्लिप मत होना। और अब 2 ऐसे लोगों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, बिकॉज मैं इनका बचपन से फैन रहा हूं, और फैन इसलिए रहा हूं, और अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, यू नो, बोथ ऑफ दीस थिंग्स आई एम गोना टॉक अबाउट, जो मैंने भेजा है। बस तालियां यार, आई बेटर राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। और 30 सेकंड्स का वाइल वाला वॉकिंग अप शान, आई एम गिविंग यू सम रिविजन टाइम। मैं वो 30 सेकंड का गाना अभी आपको जरूर सुना रहा हूं। हल्की हल्की बारिश, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर आवर मीडिया। The legendary Javed Akhtar Saab, composed by Lalit ji himself. आकृति और शान के ताली हो जाए, ladies and gentlemen. And can we have another mic, please? Thank you. आकृति, वेरी टॉपिकल सॉन्ग। हल्की हल्की बारिशें तो हो ही रही हैं, और बहुत ही प्यारा गाना है। और ऑफ कोर्स जैसे ललित जी ने कहा कि जब खुद अंदर से ही आवाज़ आती है कि इस गाने में, और ऑफ कोर्स फिर जब समटाइम सिंगर्स आर द लास्ट कॉग ऑन द व्हील, सारा सब कुछ तैयार हो जाता है, फिर आपको आकर उस चीज़ पर अपना एक स्टैम्प रखना होता है। लेकिन सबसे पहले तो जस्ट टू गेट ओवर सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी, टू गेट ओवर सच ब्यूटीफुल लिरिक्स, और जिस तरह से पूरे गाने का एक फील मिलता है कि गाते गाते ही लग रहा था कि बारिशें, तब तो बारिशों की मौसम नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि जब गाना आया है तो बारिशों का मौसम नहीं, आज है। हमने और, स्पेशली 2 दिन जो सूखा पड़ा था, आज तभी बारिश बहुत कर रही है। मुझे पता है उन्होंने क्लाउड सीडिंग किया है, बोला कि वो फील तब आएगा। तो वेरी वेरी thrilled, very happy to have 2 beautiful songs in this film, हल्की हल्की बारिश, and of course मन्नू क्या करेगा टाइटल ट्रैक। और हृदय हो जाए थोड़ा सा। मैं गाने के पहले डेफिनेटली एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ललित जी, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस सॉन्ग।
व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग, मैं सबको बताना चाहती हूँ, आप लोग 30 सेकेंड सुन रहे हैं, प्लीज ये प्रॉमिस करिए कि घर जाके जब ये म्यूजिक ऑफिशियली बाहर होगा तो आप लोग इसे तसल्ली से बैठ के, सिर्फ ये नहीं पूरी एल्बम तसल्ली से सुनेंगे एंड यहाँ वहाँ शेयर करेंगे, बिकॉज उसके बिना दैट्स द काइंड ऑफ लव, दैट्स द काइंड ऑफ प्यार दैट द म्यूजिक दैट्स कमिंग आउट राइट नाउ रिक्वायर्स. And you hear it for 3 minutes, 4 minutes, every song on an average, but you have no idea the number of months that go behind making each track. And एक एक गाने को बनाने में जो टाइम लगता है, उसके बाद हमारा रोल आता है जब हम स्टूडियो में जाते हैं. अक्सर 99% रिकॉर्डिंग्स में तो you just reach, you write the lyrics, you hear it and you sing it. But the world of difference जो आपको इसमें सुनाई देगा, वो इसलिए सुनाई देगा क्योंकि ललित जी बकायदा सब सिंगर्स के साथ बैठ के रिहर्सल्स एंड रिहर्सल्स करते हैं, सो दैट इट कम्स आउट एग्जैक्टली द वे ही हैज इन्विजन्ड इट, इमेजिन्ड इट. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू पुट टुगेदर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ललित जी. आकृति, इज दैट द नॉर्म दीस डेज या फिर ये एक इट्स अजूबा अनहर्ड है? ऑफ. Really? इट्स अनहर्ड ऑफ. बहुत बढ़िया. इट्स वेरी वेरी रेयर. एंड सच कहूँ तो मैं अभी भी मैं हील्स पहन के थोड़ी सी ऐसे हो रही हूँ, बिकॉज उनके गाने सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन बहुत ट्रिकी होते हैं. बिकॉज डांट पड़ी है क्या? हाँ, डांट पड़ी क्या? पहले ही बोल दिया था उन्होंने, ऐसे 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 करके ना अच्छे से गाना, तो मैं बोल रहा फिर उन्होंने बाद में कहा हाँ अच्छा गा लिया तुमने, तब मुझे सांस आई है फाइनली. Right. तो हो जाए, the two of you such wonderful compliments to each other, and Shan will of course have the title track इसके बाद भी, पर पहले ये हो जाए. ठीक है. अच्छा, ये लिरिक्स जावेद साहब ने लिखे हैं. जी जी बिल्कुल. तो जावेद अख्तर साहब के बारे में इफ यू वांट टू से समथिंग. अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, जावेद साहब के बारे में क्या ही कहें. मैं तो सोच रहा हूँ एग्जाम जल्दी से कर लें ताकि हम पास हो जाएं और तो शुरू कर दे. स्केल आप कुछ बता रहे थे. अच्छा. हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले. मध्यम सांसें, दिल जल्दी जल्दी धड़के, सारे पल सपनों में ढले. गाता है ये सारा समा, सुनता है जिसे आसमां, देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ. जहाँ नशीली है हवा, क्या जाने दो. पूछूं कैसे तुमसे, क्यों हो यूं गुमसुम से, बोलो क्या ख्याल आ गया है. हैरा हैरा सी हूँ, लिप सिंक विद मी. जागी या सोई हूँ, दिल में ये सवाल आ गया है. वाह. हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले. Just to see two wonderful talents just doing it live on stage. बड़ी round of applause ladies and gentlemen. बड़ा मुश्किल होता है, कोई मॉनिटर नहीं है, कोई रिहर्सल नहीं की है, there's nothing in the ears. It's just so wonderful to see that, and I think that's just the genius of all of you all. But मन्नू क्या करेगा? जो टाइटल ट्रैक है शान, you're going to be solo on this. कुमार साहब ने लिरिक्स लिखे, तालियां हो जाए ladies and gentlemen. लेकिन एक हाईलाइट है इसमें, एक रैप बहुत कमाल का है. आप करेंगे? वो किसने किया था रैप? मुझे लगता है कि हाँ जी, मनु खुद कर लेगा रैप. अरे क्या बात है अभी भाई. आज इज द डे जब सारे पत्ते दिखा दो. इफ यू कैन रैप, जस्ट डू इट टुडे. अभी अच्छा, ओके ओके Okay, without the rap. Okay, let's go. ठीक है, we'll wrap it without the rap. Thank you so much, Akriti. Yeah, I'll be the spectator right here. अच्छा, yes. I asked if she could stay on stage while you sing that as well. हाँ, पहले चला दो. अच्छा, let's play the song. अच्छा, let's play the song. पहले 30 सारा जमाना दिल घबराए रे, भला भला तो यार तेरी फिक्र सताए रे. हे बुला बुरा सारा जमाना दिल घबराए रे, भला भला तो यार तेरी फिक्र सताए रे. मन्नू मूड मनमाना है, मन्नू
कभी मनाना है मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा मन्नू कभी लगता हीरो मन्नू कभी लगता हीरो मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा किलिंग इट शान सर, कुछ शब्द भी हो जाए आपको हमने स्टेज पर अभी बुलाना चाहेंगे। कुमार भाई जो सारे जो लिरिक्स लिखे, बहुत सारे तालियां हो जाए सबके लिए। वर्ड्स है इसमें। थैंक यू वेरी मच। देखो, पहली बात तो ललित सर ने बोल दिया इस फिल्म का बेस्ट गाना संजय सर ने लिखा, मेरे हाथ लगा मन्नू, मैंने भी निबेड़ दिया उसको। तो शान सर ने गाया गाना, थैंक यू ललित सर। काम मैं करता रहूंगा, आगे भी करूंगा, लेकिन आपके साथ लिखा हुआ हर गीत मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। अच्छी बात तो ये है, बहुत अच्छी बात ये भी है कि इनके बेटों के साथ भी मैं गाना फिल्म कर रहा हूँ एक, तो उसके लिए मिल तो दिल मेरा भी टूटा है सर, बट मेरे को मन्नू गाना दिया आपने सर, थैंक यू। तो लेकिन हिट वाला स्टैम्प तो हमारे कुमार भाई के पास है। वो क्या करें, लगा हुआ स्टैम्प। मैं क्लब कभी गया हूँ, सारे क्लब के गाने लिखवाते हैं मुझसे। क्लब चला गया तो क्या धमाल करूंगा ये बताओ मुझे। सर आप हर एक गाने में आप आराम से लिख पाते हो, मुझे लगता है आपका राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? कई बार लोग पूछते हैं ना, हाउ डू हिट लिरिसिस्ट मैनेज टू कीप इट गोइंग, क्या होता है? मूड के हिसाब से आप ऐसे ही शब्द लिखते रहते हो और बाद में भी ढांचे में डाल देते हो, या व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट? हिट टैग लोग देते हैं आपको, आप तो अच्छा काम करते हो, लोग बोलते हैं हम हिट हैं, बट हम हमेशा गाने की बेहतरी के लिए, लाइक कोई सिचुएशन आती है तो पहले धुन बनती है, गाने की भी धुन बनी थी, तो डायरेक्टर साहब सिचुएशन बताते हैं आपको, फिर उसके मुताबिक जो शब्द होते हैं उसके इर्द गिर्द गाने चाहिए, तो वो उसके काबिल जो शब्द होते हैं हम हमारे तक पहुंचते हैं, हम उसको असेंबल करते हैं, 4 शब्द जोड़कर लोगों का गीत बनता है, पर मेरा जादू बन जाता है बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू शान, थैंक यू सर। थैंक यू कुमार सर के लिए तालियां हो जाए, आकृति और शान के लिए भी थैंक यू डार्लिंग। क्या एनर्जी स्टेज पर आई है, सो वंडरफुल टू सी। उदित जी के बाद शान, व्हाट अ नाइट इट्स ऑलरेडी टर्निंग आउट टू बी। लेकिन अभी इस स्टेज पर, बिकॉज दिस फिल्म हैज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक ट्रेलर का रीजन ही ये था जो एल्बम लॉन्च, बिकॉज इतनी अलग अलग टाइप की म्यूजिक थी, और यूपी में गर्दा मचा दी है सैया, sung by the folk queen of, वेलकम मैम, इस तरफ से आ जाइए इफ यू वांट। नहीं, वंस मोर तो स्टेज पर होगा ना अभी। वेलकम मैम। बहुत बहुत मुबारक, जी जी चालू है मैम। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत व्योम को, साक्षी को, जन्नत जी को और शरद जी को, पूरी टीम को, ललित जी को, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें पूरे 2 नए फूल इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, तो हम लोग तो दुआ करेंगे कि बहुत कामयाब, ऐसी खुशबू इनकी बिखरे कि एक, पता नहीं क्यों मुझको ये तो पूरा, मैं अभी तो म्यूजिक, मैं लखनऊ से हूँ और फिल्मों में कई बार गाने गाए, लेकिन ये पहली बार मैं किसी म्यूजिक लॉन्च में आई हूँ, और उसका कारण सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा गाना गाने के लिए कहा गया था जो शायद आज मेरी पहचान बन चुकी है, तो मैं बहुत खुशी से आई। और इस गाने से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपके हम लोग सब फैन रहे हैं। अभी तो उदित जी, शान जी इतनी बातें बता चुके हैं, हम लोग तब से आपके फैन हैं। और अचानक मुलाकात हमारी होती रही, अचानक ललित जी का फोन आया और मुझे लगता है आप साथ बैठे थे और साथ में थे, और आपने कहा कि मालिनी जी, वी वांट सैया मिले लड़कैया इन द फिल्म एज इट इज, सो आर यू ओके? मैंने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल करते हैं। और फिर मैं आई बॉम्बे, आपके संग रिहर्सल हुआ। मैं कभी भूल नहीं सकती कि आज के दौर में फोक जैसा होना चाहिए था, लाइव म्यूजिक के साथ, म्यूजिशियन चारी भाई वगैरह थे और नितिन शंकर जी के साथ स्टूडियो में, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अदिति। ऑफ कोर्स इट वाज अ थॉरो प्रोसेस दैट आई एंजॉयड। मजे की बात ये हुई जब उन्होंने बताया कि वी वांट यू ऑन स्क्रीन, आप जैसी हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप भी गाने में थोड़ी देर के लिए आए। और कमाल की बात ये बस हुई कि गाना तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन शूटिंग से 4 दिन पहले
I injured my ribs and I had a fracture in my ribs. और देहरादून हरिद्वार में शूटिंग हो रही थी और मैंने कहा कमिटमेंट है तो मैं जरूर आऊंगी और आपको आई वॉज इन डीप डीप पेन और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जहां मैं बैठी हूँ सोफा लगा है क्योंकि उन्होंने खास इस बात का ख्याल रखा कि आपका यदि मन करे तो उठिएगा मन करे तो नाचिएगा बट जैसे कहते हैं कि एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन आर्टिस्ट आई वॉज इन पेन बट आई डांस्ड एंड आई कैन नेवर फॉरगेट पूरा वो जो मंजर था और एज एन आर्टिस्ट हम लोग के भी फैन मोमेंट्स होते हैं आई वॉकिंग अप टू कुमुद जी एंड टेलिंग हिम व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज पूरा वो शाम का पूरा वो माहौल सबसे बड़ी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगी मैं एक फोक आर्टिस्ट हूं लोग जरूर फोक को शामिल करते हैं म्यूजिक को अपने लाइब्रेरी के लिए अपने रेpertoire के लिए अक्सर इंसाफ नहीं होता उन गानों के साथ कहाँ यूज किए जा रहे हैं और किस तरह से यूज किए जा रहे हैं आई वाज सो हैप्पी कि जो बुलौआ जैसे हमारे यहाँ शादियों में इम्प्रॉम्प्टू डांस म्यूजिक होता है एंड विच इनफैक्ट ये बहुत मैं कह सकूं कि मुझे बड़ी विंटेज फीलिंग आ रही थी इसको देखकर और आज जो जमाना चल रहा है फिल्म में म्यूजिक में कि वी आर ऑल गोइंग बैक टू आवर रूट्स समवेयर 90s इज इन 2000 इज इन तो आज आपके जितने रोमांटिक गाने भी हैं क्या गाते हैं शान आप मतलब वाकई आप मैं भी जस्ट सुन रही थी टाइमलेस आवाज है आपकी उदित जी की आई थिंक इंडस्ट्री सो ब्लेस्ड टू हैव यू एंड सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये दोनों बच्चे इतने प्यारे हैं आई कैन टेल यू हम लोग भी बहुत अनुभव देखने का आई थिंक दे आर हियर टू स्टे बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू रॉक इट या बोथ ऑफ देम मालिनी जी एक जुगलबंदी हम चाहेंगे स्टेज पर जरूर जरूर इसके लिए मैं सांची को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और क्योंकि वी ट्राई टू रिक्रिएट थोड़ा बहुत जो स्टेज पर था उसमें हमारे दो पैप्स को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अरे मैं पहले तो डिस्कस कर चुका हूं डिसाइड कर चुका हूं दुर्गेश और सिकंदर ऐसा क्या है कहां भाग गए ऐसा क्या नहीं बिकॉज आई हैव टू हैव द बॉयज अरे दुर्गेश और आपको बुलाने कोई भी आ जाएगा नहीं बट उनको आना भी चाहिए ना हाँ, नाचना चाहेंगे आ जाएंगे ये आ जाएंगे तो चलो कोई अगर होनहार लड़का है जो अपना हाथ खड़ा करना चाहेगा ये खुद 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 असल में चाह रहे हैं ये खुद नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं ये गलतफहमी में हम बिल्कुल नहीं Come on, रहेंगे join. चलो ठीक है सर सर आप ना नहीं कर सकते सर आप ही की फिल्म है आइए सर ऐसा है ना अभी गाना शुरू करते हैं मुझे लगता है सब आ जाएंगे प्लीज प्लीज जी बिल्कुल गाना तो शुरू होने दीजिए सब आ टुडे यू आर इन अ मूड शान और रिदम है नहीं तो आप लोग सब लोग तालियां बजा दीजिएगा उसी से लय मिल जाएगी चलिए तो जब भी आपको ठीक लगे मैम इट्स ऑल योर्स जी पाली उमरिया में और ब्याह के आई अरे मैं भोली सयाना धानू अरे हाँ कैसी विपत पड़ी मोरी गुइया हर कछु न बूझी अजानू हो सैया मिले लड़ी कैया मैं का करूं सैया मिले लड़ी कैया मैं का करूं सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हाय मैं क्या करूं बारह बरस की मैं ब्याह की आई 12 बरस की मैं ब्याह की आई सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हाँ सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हाय मैं क्या करूं 15 बरस की मैं अरे गाँव में आई
अरे गाँव में पियाई गुइया गाँव में पियाई गाँव में पियाई गुइया गाँव में पियाई 15 बरस की माँ गाँव में पियाई सैया सैया उड़ा कन्हैया मैं क्या करूं सैया उड़ावे कन्हैया मैं क्या करूं सैया उड़ावे कन्हैया मैं क्या करूं सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हाँ सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं हाय मैं क्या करूं हाय मैं क्या करूं बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभारी है हम कि आज एक्चुअली शी हैज ग्रेस दिस ओकेजन, जैसे खुद बोला कि पहली बार वो आई हैं एक ऑडियो म्यूजिक लॉन्च पर, सो दिस इज इनक्रेडिबल। एंड ऑल्सो आपका जो रिश्ता है सर के साथ में, प्रोड्यूसर के साथ में, आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि फॉर समथिंग लाइक दिस इतने सालों के बाद अब आ गए हैं, तो इसी के लिए ताली हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक जेस्चर की भी और तारीफ करना चाहूंगी। जन्नत जी कहाँ हैं? वेयर इज शी? जी। आई हैव टू मेंशन दिस सिंस दे रियलाइज दैट आई वाज इन पेन एंड किसी भी तरह से बस मैं आई थी कि करना है शूट और पूरी रात हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड टू लीव और उन्होंने कहा कि हमको जैसे शूटिंग में होता है कि जो हमको और क्राउड के संग सीन्स करने हैं तो हम ड्रेस आपकी रख सकते हैं क्या? आई हैड जो आप देख रहे हैं वो पूरा पर्पल मेरा खुद का लहंगा था, तो मैंने कहा बिल्कुल आप रख लीजिए। और एक हफ्ते बाद जब उन्होंने वापस भेजा, शी सेंट अ ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी ऑल्सो अलॉन्ग विद इट कि आपने एक बार मेरे कहने पे आपने अपना लहंगा दे दिया। आई थिंक ये पूरा बहुत प्यार और बहुत अपनापे के साथ फिल्म बनी है और ऐसा नहीं होता तो ललित जी कहाँ से सैया मिले लड़कैया के लिए सोचते। ललित जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है अभी तो गाना आधा आया है, पूरा नहीं आया था। इट्स अ शॉर्टर वर्जन, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर सॉन्ग्स विद यू। थैंक यू so much ma'am, and thank you so much. Thank you. Please do take a seat. Thank you. Okay. एक आखिरी गाना जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं फ्रॉम द म्यूजिक एल्बम, दैट इज गुलफाम। तालियां हो जाए फॉर ऑल द वेरियस फ्लेवर्स दैट आर देयर इन द एल्बम। और अब बिफोर आई गो इनटू द ट्रेलर लॉन्च में एक ग्रुप फोटो चाहूंगा, और शरद जी आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज। पूरी स्टार कास्ट, जो भी लोग जुड़े हैं फिल्म के साथ में, आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबडी ऑन स्टेज। एवरीबडी, ऑल द स्टार कास्ट, द टेक्नीशियंस। पहले ट्रेलर करना है, बॉसेस सेड, सो विल फर्स्ट प्ले द ट्रेलर। तो ट्रेलर पहले हो जाए, उसके बाद आई कॉल एवरीबडी ऑन स्टेज। पहले हो जाए, यस। कैन वी प्ले द ट्रेलर प्लीज, बैक टू बैक ऑन स्टेज। ललित सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? साची व्योम, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? अब ये लोग सवाल करेंगे, मैं तो सिंपल था ना, आ जाइए। एंड ऑफ कोर्स वी लाइक टू थैंक जैकी श्रॉफ सर एंड भवन ईरानी सर ऑल्सो for their support for this film, and I'd like to call a very special person on stage also who had a big hand in discovering Vyom. Vivek Vaswani ji, can we have you on stage as well, sir? Big round of applause, ladies and gentlemen. And जब इनके आशीर्वाद आ जाए और इनकी जैसे आंख आ जाए, this boy is going to go a long way, as we all know. Shah Rukh Khan, well, that was Vivek sir himself who discovered him. Yes, sir. Can we have you on stage, please? Ladies and gentlemen, big round of applause. आशीष जी, वेलकम वेलकम। कैबिनेट मिनिस्टर आशीष शेलार साहब, ऑलवेज मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। सर, नमस्कार आशीष जी, हाउ आर यू? एडवोकेट आशीष शेलार, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड कल्चरल मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आशीष जी, आप नीचे नहीं बैठ सकते? कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज, सर? वेलकम सर, गुड टू सी यू अगेन। Sir. Big round of applause, ladies and gentlemen. We've been graced for the right people at the right occasions. And a small token of thanks from our film for Ashish ji. Mike, please.
आशीष जी पहले विल डू अ फोटो आप, फिर मैं कुछ शब्द लूंगा आपसे. आप गा सकते हैं वैसे सर. वी बीन हैविंग सम अमेजिंग सिंगर्स, बट जरूर कुछ शब्द बिकॉज योर. मैं आशीष जी के बारे में ये भी बोलना चाहूंगा, ऑलवेज सपोर्ट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सो मच, एंड दैट्स व्हाई हम आभारी हैं कि आज हमारे स्टेज पर भी हमारे पास आए हैं. सर प्लीज कुछ शब्द हो जाए. भैया कोई भाषण करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मंत्री आता है तो भाषण करता ही है. लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि कल्चरल अफेयर मिनिस्ट्री मेरे पास है, और देश की कल्चरल हब देश का ये मुंबई है. और मुंबई में भी इतने सारे बॉलीवुड और फिल्मों का निर्माण होता है कि जिसके कारण पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है. और मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता क्या करेगा, और पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने देखी भी नहीं है. अच्छी होगी ऐसी अपेक्षा है, अच्छा ही काम होगा, लेकिन उसमें कुछ और होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं. क्योंकि जतिन भाई, मैं कोई एक फिल्म के, ललित भाई के एक फिल्म के प्रोग्राम में गया था, बाद में उस फिल्म का कुछ, अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ इशू अच्छा ही होता है, और मेरे नाम से मंत्री ने ये कह दिया करके चिपका दिया, और असेंबली में मुझे आंसर देना पड़ा. तो मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मन्नू अच्छा करेगा ऐसा मेरी अपेक्षा है. और इसके लिए मेरी फिल्म को भी शुभकामनाएं हैं. आज म्यूजिक लॉन्च है, और मेरे दोनों मित्र शान भाई भी यहाँ पर आइए. शान भाई आइए, और उदित जी भी यहाँ पर है. जरा उन दोनों के लिए ताली जोरदार बजाइए. और ललित जी तो सुपरस्टार है, इन्होंने काफी को सुपरस्टार भी बनाया है, और इसके कारण आपका काम अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला उसका होता है. तो इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं, और सभी फिल्म्स के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर, इन सबको शुभकामनाएं. और अमित भाई, वो भी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, एक्टिंग भी किया है, लॉयर भी है, तो उनको भी शुभकामनाएं. आप सबको ये पिक्चर बहुत आनंद दे, इस तरीके का बना है ऐसा मानकर शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. इफ यू कुड जस्ट हैव अ सीट सर. यहाँ से स्टेयरकेस है सर. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड कैन वी, यस यस, थैंक यू उदय जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू शान. विल जस्ट ओपन आउट टू द मीडिया फॉर एनी क्वेश्चंस. और डायरेक्टर साहब से जिससे ज्यादा बातें नहीं हुई सर, वी वुड लाइक यू टू स्टार्ट इट. मुझे कुछ बोलना है? संजय जी, वीड लाइक अ फ्यू वर्ड्स सर बिफोर वी ओपन आउट टू द मीडिया. योर लेबर ऑफ लव सबके सामने है सर. तो हमारे लिए तो एक रीयूनियन सा हो गया कि हमारी सारी टीम के साथ हम फिर मिल रहे हैं. ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. शायद पिछली, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पिछली फिल्म बनाने मुझे 6 साल लगे बट ये फिल्म 6 महीने में बनी थी. और इसका बहुत सारा श्रेय मैं शरद जी को देना चाहूँगा. इनका विजन था, स्क्रिप्ट इन्होंने सेलेक्ट की थी, और मुझे उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया कि मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर सकता हूँ. मुझे फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई. ये कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी है, और शायद कमिंग ऑफ एज मेरी पिछले फिल्मों के साथ जुड़ सा गया है. वो मैंने क्लब 60 की थी, वो भी कमिंग ऑफ एज थी. मिनियन फैमिली की, वो भी कमिंग ऑफ एज थी, 2 जनरेशन्स की. और यहाँ भी 2 यंगस्टर्स की कमिंग ऑफ एज है. सो मेरे लिए ये बहुत ही एक बढ़िया सब्जेक्ट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था. और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी सौरभ ने, और सबका बहुत सहयोग रहा. शरद जी का फुल सपोर्ट रहा. एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, और हमारे खाने पीने का इतना बढ़िया ध्यान रखा प्रोड्यूसर ने, कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और मिठाइयाँ जो सेट पे आती थी
और ऐसी ऐसी बालूशाही और चीनी की मिठाइयाँ हमने खाई, तो कुछ मिठास जो आपको फिल्म में दिखेगी उसका बहुत सारा श्रेय शरद जी को जाता है. तो थैंक यू एवरीवन, ऑल माय टीम इज हियर, राघव, द डीओपी, लीना, दिस वंडरफुल सेट्स, एंड राजेश, आप थोड़ा लक हमारी फिल्म पे भी रब कर दीजिए, सैयारा वाला, चारू, एंड हाँ लवीना, एंड everyone, thank you so much. It was a wonderful experience and I'll cherish all my life. And Vyom and Sachi, they were like wonderful. They gave their best and it was मुझे अब शायद नए न्यू कमर्स के साथ काम करने का एडिक्शन सा हो रहा है आफ्टर बिनी एंड दिस ऑल्सो द न्यू कमर्स. सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड दैट शायद अगली फिल्म में भी, और न्यू कमर का शायद सीजन भी चल रहा है अभी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंडरफुल, मेरी पिछली फिल्म में भी एसोसिएशन रहा और ललित जी के मेलोडी का मैं फैन रहा हूँ. एंड फिल्म को लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि ललित जी के अद्भुत गाने इस फिल्म में थे जो शरद जी और ललित जी ने मिलकर क्रिएट किया है. दैट्स वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. Hi, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. यस. hi, Akash here from Navbharat newspaper. एक सेकंड, थोड़ा माइक का Hi, इनकी hello. आवाज बुलंद. यस, थैंक यू. जी, आकाश here from Navbharat newspaper here on your right. मेरा सवाल जो है शरद सर आपसे है. जब भी हम किसी न्यू कमर को लाते हैं तो एक जिम्मेदारी भी होती है कि कलाकार में बहुत सारी खूबियां हैं, वो सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके जब हम उन्हें लेकर आते हैं. जब आपने व्योम और शची को चुना तो क्या चीज़ें थी जिन्हें देखने के बाद आपको लगा कि हाँ, दे आर द राइट चॉइस फॉर दिस फिल्म? आई थिंक एक तो जो कैरेक्टर था मन्नू और जिया का, तो जब व्योम को मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस उसमें फिट हो रहा है वो. सो एक होता है ना कि एक होता है ऑडिशन कैमरे के सामने और एक ऑडिशन होता है रियल लाइफ में. तो मन्नू का तो रियल लाइफ ऑडिशन हो गया था. सांची, जब जिया का रोल था तो हमने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया और फाइनली एक चॉइस हमारे पास अनीत थी जो सैयारा में शी इज बिकम अ सुपर हिट, एंड देन वी हैड सांची. बट एक था कि सांची को देख के लग रहा था कि सांची जिया है. तो जब मुझे और संजय दोनों को ये कन्विक्शन हो गया तो ये हुआ कि मन्नू और जिया को फिर कास्ट करते हैं. और आई थिंक जब पूरी फिल्म बन गई तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर आप फिल्म को देखते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी और चेंज करी. बट एक चीज़ थी कि मैंने इन दोनों को भी बोला कि मन्नू और जिया की एक्टिंग में हम कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाए. दैट वॉज फैबुलस. लगेगा ही नहीं कि इनकी पहली पिक्चर है. वेल डन. हेलो हेलो, यहाँ शरद जी, हम लोग ने बहुत मज़ा किया था देहरादून में. हम लोग आए थे आपकी ब्यूटीफुल वाइफ ने हम लोगों को लड्डू भी दिए थे. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो साल है ये पूरा म्यूजिकल ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में आ रही हैं ना उसमें म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सैयारा अभी काफ़ी हिट हुई और उसमें भी नए आर्टिस्ट थे और मतलब उनको कोई नहीं जानता था. तो उस इतनी बड़ी हिट फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि इसमें भी सब कुछ वैसा ही है, म्यूज़िक अच्छा है, हीरो हीरोइन अच्छे हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं. तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? चलिए देखिए, एक तो पहली बात, आपको पेड़े दिए थे बेसन के. मुझे याद इसलिए क्योंकि वो 4-5 बार उसका ट्रायल हुआ था बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए. ओके ओके. आई थिंक सैयारा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा. दैट पीपल स्टार्टेड टू गो बैक टू द थिएटर. फिल्म हैज़ डन वेरी वेल. और उम्मीद तो हमें भी यही है कि मन्नू और जिया जो काम कर रहे हैं वो भी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी. और एक जो एक हो गया था कि न्यू कमर्स की पिक्चरें शायद नहीं चलती हैं, तो वो जो सैयारा ने एक मिथ को ब्रेक कर दिया है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ सैयारा, एंड दैट्स अ ग्रेट फिल्म. हमारा जो पूरा इसमें इस फिल्म में मेहनत रही है कि हम कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, और बाकी तो आप लोग जज करेंगे, अब तो ऑडियंस के हाथ में है. बट वी हैव डन व्हाटएवर वी कुड टू मेक समथिंग स्पेशल. हेलो हेलो सर. Hello sir, Anjulika here from IBB Chronicles.
सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी म्यूजिकल ट्रीट हमें आज मिली है। इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे सामने एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। सो बिग हैंड टू यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर दिस म्यूजिकल ट्रीट। माय क्वेश्चन इज टू व्योम एंड एज शरद सर सेठ की ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ी। सो एज अ पर्सन, व्योम एज अ पर्सन एंड मन्नू एज अ कैरेक्टर, इन दोनों में आपको क्या रिलेटेबल लगा? सी मन्नू की जो इनोसेंस है ना, अच्छा पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा। मेरे को ऑडिशन देना पसंद है भी नहीं, वैसे सही बताऊँ तो बहुत अच्छा। मुझे ऑडिशन देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट सी वेरी ऑनेस्टली मन्नू की जो इनोसेंस है, वो जब भी आप देखोगे ना वो कैरेक्टर को, शायद से यहाँ पे इतना हम ज़्यादा देर नहीं दिखा पाए जो आपको शायद से उसको रिलेट कर पाओ, लेकिन द कैरेक्टर इज सुपर रिलेटेबल। आप बोलोगे यार एक मन्नू हमारे घर में भी है, एक पड़ोस में है, एक मैं क्या पता, आप बोलो मैं खुद ही मन्नू। ही इज कंफ्यूज, ही इज इम्परफेक्ट एंड दैट्स हिज परफेक्शन। यू नो, यू लव समवन समटाइम्स नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, you love them because you know that they're imperfect and you still love them. So that's Mannu for you. And one more question, because I'm sure the film is going to be really, really very special experience for you. Any Bollywood personality you would like to show this film? सबको यार, why would I just choose यार? But seriously अगर आप बोलो कि दिखाना सबको है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, तो आई वुड वांट के शाहरुख सर बैठे हों, ओहो रणबीर कपूर बैठे हों, और ऋतिक रोशन सर बैठे हों, सब बैठे हों, मतलब पूरा बॉलीवुड शुड काम यार, मतलब सपोर्ट। टिकट लेके, ऑफ कोर्स टिकट लेके। तो अब पता चल रहा है कि आप देख लो, मैं गुलाबी फैमिली वालों को रहा हूँ जिससे टिकट ज्यादा बिके। यस, तो अब पता चल रहा है मन्नू एक्चुअली क्या करेगा। 1% भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली, बट आई रियली होप सो आप कुछ पता लगा पाए। बट थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू। हेलो ललित जी नमस्ते। सामने आपके एकदम पीयूष परमार। किसी भी मूवी का गाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जब आपका नाम जुड़ जाता है तो आपके लिए कितना ज्यादा एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस गाने को और भी ज्यादा खूबसूरती से लेकर आ पाए जनता के सामने। देखिए, एवरी टाइम इन एवरी फिल्म इट्स अ न्यू चैलेंज, इट्स अ न्यू अप्रोच। जब से मैं कर रहा हूँ तब से टाइम बहुत बदला है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत म्यूजिशियन हूँ, हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ और सिचुएशन को समझ के काम करता हूँ। मन्नू का म्यूज़िक जो हुआ है वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ है उससे मुझे। मैंने पिक्चर नहीं देखी है, मगर मुझे उम्मीद है कि संजय ने पिक्चर अच्छी बनाई होगी और गाने जो हैं उसकी पिक्चराइजेशन में भी शरद जी का इतना हाथ है कि मैं क्या बताऊँ। और बस यही उम्मीद है कि म्यूजिक का अच्छा दौर आ रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि हम पहले आ जाएं, मगर सैयारा पहले आ गई। मगर जहाँ तक मेरा कहना, अब तो कहना ठीक नहीं है ये, मगर ये म्यूजिक का लेवल बहुत अच्छा है। अगर ये पिक्चर अच्छी बनी होगी तो ये भी पहुंच जाएगी वहां जहां इसको पहुंचना चाहिए। हेलो विवेक सर, आई एम दिनेश फ्रॉम सुरभि सलोनी। मेरा सवाल आपसे है, आपने एक समय था जब शाहरुख खान को लॉन्च किया था जो बाहर से आए थे, बाहरी थे, और अब व्योम को लॉन्च कर रहे हैं। व्योम भी बाहर से आए हैं। क्या उम्मीदें हैं व्योम से और क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? जब मैंने शाहरुख को पहली बार देखा था, सॉरी माय वॉइस इज अ लिटिल हॉर्स, I saw his energy, I saw his charm, his charisma, and then I saw his talent. When I met Vyom, we became friends, we started talking. I saw the same qualities of energy, charm and talent in Vyom. Now I know how I worked with Shahrukh and where he has reached, and I hope and pray to God Almighty that Vyom reaches where Shahrukh has reached. Wow. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जरूर कि विवेक इज नॉट ओनली लॉन्च शाहरुख, ही इज ऑल्सो लॉन्च्ड जतिन ललित। आई टेल यू हाउ, बिकॉज नो वो बहुत लंबा बोलेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ। जब उदित जी ने गाना गाया था बिन तेरे सनम, माय फर्स्ट लाइफ फर्स्ट सॉन्ग, मैं तो एकदम स्टार्ट हो रहा था, देयर वाज नो वर्क एट ऑल, वी वर लाइक नोमैड्स एट होम।
ढूंढते ढूंढते ये आए कि ये नए लड़के कौन हैं, और जिस पिक्चर के लिए शाहरुख साहब को ये लेके आए थे, राजू बन गया जेंटलमैन, उसके लिए ये ढूंढ रहे थे कोई अच्छे नए टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, और उसमें इन्होंने हमको अप्रोच किया और वो पिक्चर हमको इसलिए मिली। वो पिक्चर मिलने की वजह से हमको मिली कभी हाँ कभी ना, और जो जीता वही सिकंदर भी उसी दौरान मिल गई। तो वो जो स्टार्ट इनके साथ हुआ वो लगभग